Welcome students, in today's lecture we are taking the typical numericals based on the concentrations. चलो अब यहाँ पे यूनिट कंसंट्रेशन यूनिट्स का रिविजन नंबर 2 आज सेकेंड लेक्चर है अपना. प्रीवियस लेक्चर में हमने मोलारिटी, नॉर्मालिटी एंड डब्ल्यू बाई वी और अनदर साइड मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू. ओके, सच न्यूमेरिकल्स were taken. Now today we are taking the interchange. See, at one side we know that there are the units molarity, normality and percentage W by V, right? And at another side molality, mole fraction and percentage W by W. Okay, and now we are taking the relations from volume based unit to mass based units. Okay, so now molarity to molality. So what is the relation? So the relation is one upon molarity equals 1 upon molality, 1 upon density into bracket molecular mass of solute divided by 1000 plus 1 upon molality. Okay, relation between molarity and normality. So the relation is normality equals molarity into, and it is done. Relation between W by V and W by molarity is molarity equals percentage W by V into 10 by molecular mass, and here instead of molecular mass we will consider equivalent mass. Okay, here molality equals x of solute into 1000 divided by x of solvent into molecular mass of solvent. Okay, now relation between percentage W by V and W by W, it is density equals percentage W by V by 10, percentage W by V by percentage W by W. So the relation between molarity and percentage W by W, this relation is molarity equals percentage W by W into D. See, it is derived by making subject to this W by V. It means density into W by W, that is taken here. Okay, here we have put the value of percentage W by V and it is density into W by W. So it is written here multiplied by 10 divided by molecular mass. Okay, and if we take the relation between normality and W by W, then here instead of molecular mass we will take here equivalent mass. Okay, I am not writing the whole formula again. ओके तो देखो हमने कैसे न्यूमेरिकल्स लिए, इन तीनों के न्यूमेरिकल्स ले लिए इंटरचेंज, इन तीनों के इंटरचेंज और फ्रॉम वन टू अनदर वन. चलो तो उसका फर्स्ट एक बेसिक न्यूमेरिकल है. चलो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम. ओके तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हियर मोलारिटी इज गिवन एंड मोलालिटी इज आस्क्ड, both are given to you and density is asked. So the formula is 1 upon molarity equals 1 upon density into bracket molecular mass of solute
divided by 1000 plus 1 upon molality. ओके, डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाओ, मोलारिटी यहाँ पे 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH 40 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1/2. ओके, तो चलो यहाँ पे आएगा 2 4s 8, 8 by 100, that is 0.08, and here it is 2 into 1/2, that is 1. So answer is 1.08 ग्राम पर ml. ओके, ये 2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी हो गया ना इससे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो जो इंटरचेंज वाले हैं वो तो आई थिंक सबको आ जाएंगे, तो चलो एक भी फिर भी एक दो देख लो टिपिकल न्यूमेरिकल्स. फॉर एग्जांपल यू आर गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in 0.05 molar aqueous solution. Now try this. Okay, so here mole fraction of urea in 0.05 molar aqueous solution. तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आपको पूछा है और मोलालिटी दी है, तो फिर रिलेशन क्या है? ये न्यूमेरिकल दो मेथड से होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मीनिंग के हिसाब से मोलालिटी का मीनिंग लिख दो. 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स 0.05 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन देख लो, एक्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 एक्स ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट ना, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पे देखो एक्वियस दिया है मतलब वाटर, मोलालिटी इज 0.05. ओके, और m0 molecular mass of solvent, that is 18 by 1000 equals x of solute divided by 1 minus x of solute. ओके, रेसिप्रोकल ले लो चलो, तो 1000 into 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 18 का हाफ 9 और 0.9 होगा यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ सॉल्यूट. इसको हम लिख सकेंगे ऐसे 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट माइनस 1. ओके, तो ये हुआ 10,000 बाय 9. ओके, 1000 तो था ही और 10,000 बाय 9, और उसमें से फिर 1 ऐड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल. ओके, तो ये सिंपल टेक्निक है. तो यहाँ पे 9 1 से 9, देन 10 अगेन, 9 1 से 9, 10 अगेन, डबल 1 आएगा और +1, तो 1112.1. तो एक्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे होगा 1 अपॉन 1112.11. ओके, चलो और आंसर क्या आ रहा है देखते हैं. (8.99 into 10⁻⁻⁴). ओके, दिस इज अवर आंसर. यहाँ पे भी डायरेक्टली हो सकता है कि चलो +1 कर दो और फिर 10,000 है और +1 आएगा, तो 9 10,009 डिवाइडेड बाय 9, उस हिसाब से भी हो सकेगा. आंसर तो यही आएगा. ओके, या रेगुलर मेथड एज यू विश. Now students, we are taking the numericals based on dilution. See, for dilution there are total 2 formulas. Number 1, M1V1 equals M2V2, and second, MV equals M1V1 plus M2V2 plus M3V3.
Okay, so m1v1 equals m2v2. Suppose this one is initial and this one is final. This formula uses whenever three solutions are mixed. If two solutions are mixed and you are asked the total volume, then this formula is applied. Three solutions, then m1v1 plus m2v2, then m3v3. Two solutions, then m1v1 plus m2v2. Four solutions, then m1v1 plus m2v2 plus m3v3 and plus m4v4. ओके मतलब जितने सॉल्यूशंस मिक्स किए उस हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके न्यूमेरिकल उसमें ऐसे पूछ सकते हैं, देख लो. डायरेक्ट थोड़ा टिपिकल लेते हैं अब. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको दिया है 300 ml 10% W/V H2SO4. ओके और फाइनल कंसंट्रेशन हमें चाहिए 0.5 मोलर. तो यहां पे फॉर्मूला होगा m1v1 इक्वल्स m2v2. दिस वन इज फॉर इनिशियल एंड दिस वन इज फॉर फाइनल. सो m1, अब देखो मोलारिटी तो हमें पता नहीं है, तो m1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो W/V से पहले m1 कैलकुलेट करो, तो परसेंटेज W/V इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 98. सो 100 बाई 98, दैट इज ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग. चलो अभी मैं 1 ही लिख रहा हूं यहाँ पे. तो ये 1 है, ये V1, उसका वॉल्यूम 300 ml यू आर गिवन. M2 we want 0.5, so at that time V2 should be 600 ml. So 600 ml is the final volume. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है? तो इनिशियल वॉल्यूम 300, फाइनल वॉल्यूम 600. तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? V2 माइनस V1, दैट विल बी 300. मतलब वॉल्यूम डबल कर दिया आपने, बिकॉज कंसंट्रेशन इज हाफ्ड. 1 मोलर में से 0.5. ओके नेक्स्ट. Okay, so what volume of 0.3 molar HCl and 0.8 molar HCl, and final concentration is 0.65, so it's a middle between them. That means particular volume will be needed of 0.3 molar and 0.8 molar. So here formula will be MV equals, here A solution and B solution is given. So in formula we will take a change, MAVA and MBVB, A for solution A and BB for solution B. Final molarity is 0.65 we want, and at that time volume should be 1 liter. MA उसका concentration 0.3, VA we don't know, MB is 0.8 and its volume is VB. Now we know that this VA and VB total sum of the volume would be 1 liter. So instead of VA we can write 1 minus VB. Okay, so here 0.65, 0.3 VA, चलो 0.8 इंटू VB की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस VB. जस्ट मिनट, 1 माइनस VA. 0.3 VA, 0.8 माइनस 0.8 VA इक्वल्स 0.65. चलो ये सबसेक्शन कितना होगा? 0.3 एंड 0.8, तो ये होगा माइनस 0.5, सामने जाए तो प्लस 0.5 VA, और ये 0.8 माइनस 0.65 कितना होगा? 0.2 and 115. Okay, so VA will be 0.15 by 0.5 कितना होगा? 0.3. तो VB कितना होगा? 1 माइनस VA, दैट इज 0.7 लीटर. तो एक होगा 300 ml, दूसरा होगा 700 ml. ओके, MCQ भी पूछ सकते हैं और 2 मार्कर क्वेश्चन भी आपको ये पूछ सकते हैं. ओके चलो, तो लास्ट लेक्चर की एक डिफिकल्टी देख लेते हैं, दैट इज 2.6. हाउ मेनी ml of 0.1 molar HCl
means volume is asked of 0.1 molar HCl that is required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3. ओके चलो अब ध्यान से देखो Na2CO3 और NaHCO3 दोनों सॉलिड सब्सटेंस है, दोनों का मिक्सचर लिया, उसका मास आपको दिया है 1 ग्राम. ओके और दिया है दोनों इक्विमोलर अमाउंट्स. इस 1 ग्राम में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम दिया है ना, इक्विमोलर अमाउंट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स आर सेम. Okay, now here first of all we will take the chemical reaction. चलो रिएक्शन बाद में देखते हैं. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि चलो दोनों का अमाउंट 1 ग्राम के अंदर दोनों का अमाउंट है कितना. तो देखो 1 ग्राम दिया है दोनों का मिक्सचर. तो सपोज मास ऑफ Na2CO3 is x grams, so that the mass of NaHCO3 it will be 1 minus x gram into the mixture. ओके दोनों की अमाउंट कितनी 1 दोनों का टोटल मिक्सचर का टोटल मास है 1 ग्राम, उसमें से x है सपोज Na2CO3 तो बाकी का NaHCO3 ही होगा मीन्स 1 माइनस एक्स. ओके अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3. ओके तो चलो मोल्स ऑफ Na2CO3 तो मास x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इसका 106 है. चलो याद है ये तो. NaHCO3 का मास कितना 1 माइनस एक्स जो हमने सपोज किया है वो और डिवाइड बाय एज्यूम किया है वो. NaHCO3 23 एंड 1 24 देन CO2 का 44 और एक ओ ज़्यादा. ओके 4 एंड 3 7 एंड 1 8 8 एंड 6 4 10 4 84. ओके अब इसको हम इक्वेट करेंगे तो फिर हमें x मिल जाएगा दैट इज द मास ऑफ Na2CO3. ओके सो चलो यहाँ पे कितना होगा बोलो. x इक्वल्स 106 बाई 84 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स. चलो दोनों को 5 3 और 84 106 by 84 1.62 262 1 माइनस एक्स और यहाँ पे x. सो x इक्वल्स 1.262 माइनस 1.262x. ओके चलो एक x यहाँ पे जाएगा तो 2.262 x इक्वल्स 1.262. सो x विल बी 1.262 डिवाइडेड बाय 2.262. तो डिवीजन से हमें मिलेगा x 1.262 डिवाइडेड बाय 2.262 0.558 मतलब 0.568 लिखते हैं हम. ये किसका मास आया x दैट इज द मास ऑफ Na2CO3. तो चलो अब उसकी हम रिएक्शन लिखते हैं HCl के साथ. सो व्हेन Na2CO3
reacts with HCl, so we are getting NaCl, H2O and CO2. अब देखो Na2 है तो फिर we have to put 2, ओके। HCl को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल बैलेंस यस हो गया। मीन्स रिलेशन क्या मिला हमें, 1 मोल के सामने कितना, 2 मोल्स चाहिए हमें, ओके। तो 1 मोल का मास कितना, 106 ग्राम, मोलिकुलर मास जितना ग्राम में मास मीन्स 1 मोल, तो उसके लिए हमें 2 मोल्स चाहिए। तो यहाँ पे कितना मास है, 0.558, तो फिर सामने कितने मोल्स चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.558 डिवाइडेड बाय 106, 0.01053, तो इतने मोल्स HCl के चाहिए। ओके अब देखो मास ऑफ Na2CO3 ये है, तो मास ऑफ NaHCO3 क्या होगा, तो वो होगा 1 माइनस 0.558 मतलब 0.442 ग्राम। तो अब उसका इक्वेशन लिखते हैं, NaHCO3 प्लस HCl विच गिव्स NaCl। अब यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही Na है, ओके। तो 1 मोल के सामने 1 मोल मतलब कितना मास, उसका मॉलिक्यूलर मास 84 ग्राम के सामने 1 मोल, तो यहाँ पे कितना मास है, 0.442 ग्राम्स है, तो सामने कितने मोल्स, चलो डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ मैं, 0.442 डिवाइडेड बाय 84, 0.00526, 0.00526, तो इतने मोल ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड। अब देखो 1 ग्राम के हमने 2 पार्ट कर दिए, एक मास था 0.4558, दूसरा था 0.442, इसके लिए इतना मोल चाहिए और 0.442 के लिए इतने मोल्स चाहिए, तो टोटल मोल्स रिक्वायर्ड, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स of HCl required फर्स्ट था 0.01053 और दूसरा था 0.00526, ओके। तो फाइनल मिला हमें 6 and 3 9, 2 and 5 7, then 5 as it is, then 1, 0.1579, तो इतने मोल्स आपको चाहिए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड इक्वल्स, बोलो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड विल बी, फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो चाहिए और उसकी मोलारिटी, मतलब वॉल्यूम ऑफ HCl को सब्जेक्ट बनाया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.1579, और वॉल्यूम कितना, मोलारिटी कितनी, तो वो आपको दी है, देख लो यहाँ पे 0.1, ओके। हाँ यहाँ पे 0.01 है ही, तो फिर 0.0 आएगा, ओके, 0 यहाँ पे रह गया है और एक पॉइंट कट करो तो 0.1579 इतने लीटर, तो 157.9 ml, दैट इज ऑलमोस्ट 158 ml। हाँ एक 0 यहाँ पे रह गया था, ओके, एडिशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज के टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। गुड बाय।